If you remember, we already covered managerial decisions. Managerial decisions relating to what to produce, how much to produce, how to produce. And these questions or decisions involve three types of production relations. And those production relations were input-output relation, input-input relation, and output-output relation. ये तीन production relation हम already discussed कर चुके हैं. And if you remember that primary objective of the business manager or any business person is always maximization of profit. उसका असल objective profit maximization, but in these three production relations, situation differs, and accordingly strategy of the business manager that changes. Lekin objective behind any strategy adopted by the business manager is maximization of total profit. अब उसके लिए आप देखते हैं, if you remember about the first relation, that is input output relation, उसमें हमारी assumption थी just one variable input combined with rest of the fixed inputs. तो एक इनपुट की क्वांटिटीज चेंज हो रही 0, 1, 2, 3, output is responding. On one side there is input level, 1 unit, 2 units, 5 units, 10 units, and on the other side there is output level. And if you remember, in input-output relation, we identified 3 stages of production. Out of those 3 stages, stage 1 as well as stage 3, 2 stages were considered irrational. And the only middle stage or stage 2 was regarded as rational stage. And which means that the producer will only, a rational producer will only operate in the second stage. No one will stay in this first stage, and non-rational producer will enter into the third stage. And within the second stage, as I told you earlier, on one side there is input, and on the other side there is output. Input is to be purchased, output is to be sold. And the manager or the business person is comparing the input cost, how much the input will cost me, and how much the output will bring in the form of revenue. So on the one, cost and revenue. It may be total cost and total revenue. In the short run, only variable cost matters. So either business person will maximize the positive gap between the TR and TVC. TR minus TVC should be maximum. And what is TR? It is total output multiplied by the output price. And what is TVC? It is total units of the variable input used multiplied by input price. That gives you TVC. So TR minus TVC should be maximum. The point where it is maximized, you say this is the input use, and accordingly on y-axis you will get the output to be produced. And on marginal basis, we said marginal product. What is marginal product? The contribution
of the last unit of variable input towards TPP, total output. So change in total output caused by the use of one more unit of variable input. So input price should be equal to VMP, value of the marginal product. जहां ये बराबर, अगर आपका VMP, value of the marginal product, is greater than the price of input, it is advisable to use more and more of the variable input. वेरिएबल इनपुट पे 10 रुपए लग रहे हैं, जबकि उसके नतीजे में पैदा होने वाली आउटपुट जो है वो हमारी 15 की 17 की बिक रही है, तो हमें फायदा है। ठीक है, तो ये मार्जिनल बेस पे अगर हम कॉस्ट निकाल लें इसकी, पर यूनिट कॉस्ट MC, ABC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, we decided, if you remember, the principle was MC equals MR. MC, marginal cost, which is there in the firm. Marginal cost should be equal to MR, and MR in the competitive market will be the market price. Market price determined through market mechanism is considered marginal revenue, and same is regarded as average revenue. MC should be equal to MR, provided the point is not below ABC. ABC से नीचे गिर जाए तो शट डाउन कंडीशन, लेकिन जहां भी ऊपर ये जो ऊपर जाएगा, राइट साइड पे जाएगा, आउटपुट लेवल बढ़ता जाएगा। तो ये इनपुट आउटपुट के अंदर हमारी कंडीशन थी। अब इनपुट सेकंड जो सिचुएशन, सेकंड रिलेशन वाज, we assume that instead of one, we using two variable inputs और other inputs fixed. अब उसके अंदर अगर आपको याद हो तो हमने फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन वो भी डिस्कस किए। फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन लाइक टैक्सी एंड ड्राइवर, like computer operator and computer, like power looms and the worker। तो ये फिक्स प्रोपोर्शन है, लेकिन जो ज्यादा दिलचस्पी का सबब था that was variable proportion of input combination, और उसके अंदर we define the term isoquant। Isoquant means same output, same quantity of output. What isoquant is telling us, isoquant is providing us different combinations, different options of combining x1 and x2। दो वेरिएबल इनपुट को कंबाइन, वेरिएबल प्रोपोर्शन, वो एक दूसरे की प्रॉक्सी बन सकते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन। सो एन आइसोक्वांट provides us different combinations of two variable inputs that can alternately be used for producing a given level of output. So we can say we have different options represented by combination A, combination B, combination C, combination D, so on and so forth. अब हर combination के against we will have two figures, input 1 and input 2. Or as we move from combination A to B, B to C, one input is decreasing, the other is increasing. So we are saving one input, we are reducing the use of one input by increasing the use of other input. So the input on which is increased is serving as substitute for the same input. So yeah, different combination, but condition or assumption is output remains same. Combination A choose करें
कॉम्बिनेशन बी चूज करें या डी या एफ, whatever the combination you choose, output remains same. जब output remains same, output has to be sold in the market. जब सेम आउटपुट है तो मार्केट प्राइस पे बेचेंगे तो योर रेवेन्यू विल बी सेम, टोटल रेवेन्यू विल रिमेन सेम। डज नॉट मैटर कि आपने कौन सा इनपुट कॉम्बिनेशन यूज किया है, जब आउटपुट सेम है तो रेवेन्यू सेम। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग जो मैनेजर है उसने इनपुट कॉम्बिनेशन चूज करना है, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी or D or F or H, which combination to be preferred over others। अब यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है कि हम चीपेस्ट कॉम्बिनेशन, रेवेन्यू तो सेम रहे लेकिन हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर लें, मिनिमाइज लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। तो जो 8-10 ऑप्शंस हैं हमारे सामने या 12 ऑप्शंस इनपुट कॉम्बिनेशंस की, हम उनका जायजा लें, उनमें से कम खर्च कौन सा है, जो सबसे सस्ता कॉम्बिनेशन हो। अगर हमने वो आइडेंटिफाई करके उसको यूज कर लिया, आवर कॉस्ट विल बी मिनिमम, सेम रेवेन्यू, एज ए रिजल्ट आवर प्रॉफिट विल बी हाईएस्ट। अब वो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ढूंढने के लिए अगेन डिफरेंट अप्रोचेस थी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की। ग्राफिकली इफ यू रिमेंबर, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन द आइसोक्वांट एंड आइसोकास्ट लाइन, आइसोक्वांट एंड आइसोकास्ट लाइन के दरमियान पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। आइसोक्वांट मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस प्रोवाइडिंग सेम आउटपुट। अब isocast line provides again different combinations of two inputs which can be purchased by spending same amount of money। तो उस लाइन के ऊपर, आइसोकास्ट लाइन के ऊपर आने वाले तमाम इनपुट कॉम्बिनेशन जो हैं वो उनका खर्च एक जैसा है। अब इनको जब अब आइसोकास्ट लाइन और आइसोक्वांट को कोइंसाइड करेंगे तो देयर विल बी ओनली वन पॉइंट ऑन आइसोकास्ट व्हिच विल बी टेंजेंट टू योर आइसोक्वांट। तो लिहाजा उस क्वांटिटी के लिए लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन एक, और अदर पॉइंट्स जो ऑन दैट आइसोक्वांट विल बी ऑन लोअर आइसोक्वांट्स, मीन दैट दोज combinations will give you lower level of output, resulting in lower revenue, same cost but lower revenue. So this way, through graph, you can identify point of tangency between the isoquant and isocast line। या फिर जो मैंने आपको बताया कि ए बी सी कॉम्बिनेशन जो हैं इनके अगेंस्ट दोनों इनपुट्स की x1 x2 लेबर एंड कैपिटल या एक्स एंड जे जो भी लेबल दें उनकी क्वांटिटीज अगेंस्ट ईच कॉम्बिनेशन वो लिखी होती हैं, वो दी होती हैं कि जब आप ए से बी पे जाते हैं, बी से सी पे जाते हैं तो एक इनपुट में कमी आ रही है, इसका मतलब आप उस इनपुट को सेव कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अदर इनपुट उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है। एक इनपुट में कमी, दूसरे में इजाफा, तो आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच हर लेबल के अगेंस्ट दो क्वांटिटीज मिलेंगी। उन दोनों जो क्वांटिटीज हैं हर कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट उनको उनकी अपनी रेस्पेक्टिव प्राइसेस से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को जमा कर दें तो यू विल गेट टोटल फिगर, total amount of money required to purchase combination A, B, D, F, H, etc. अब ये 8, 10, 12 कॉम्बिनेशन होंगे और उन सब के सामने आपको उनका कॉस्ट एस्टीमेट मिल गया। अब सिंपली
आइडेंटिफाई द लोएस्ट, जो सबसे कम फिगर है उसको आइडेंटिफाई कर लें और highlight that figure, that this is the lowest figure, highlight that this combination, that this is the combination which requires the lowest cost but promising the same output level. इस तरीके से आप जो इनपुट रिलेशनशिप में आप इस मालूम कर सकते हैं लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन, और इसी लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन को हम ऑप्टिमम मौजू तरीन, which combination is appropriate, optimum combination for the producer. तो ये इनपुट रिलेशनशिप था। और तीसरा हमने डिस्कस किया था आउटपुट रिलेशन। तो आउटपुट रिलेशनशिप के अंदर इफ यू रिमेंबर, तो हमने वहां जॉइंटली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स भी देखी। जॉइंटली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स जैसे वीविंग यूनिट हो, वीविंग यूनिट के अंदर जो है वो थान के थान, लेकिन कपड़ा बुनते बुनते तैयार होते होते उनमें डैमेज पीस कई दफा आ जाते हैं, तो डैमेज पीस को काटना पड़ता है, काट टू कट पीस, डैमेज कट पीसेस, या फिर वहां पे रुई धागा वेस्ट। तो जो थान है उनकी अलग कीमत होगी, वो प्राइमरी प्रोडक्ट, और मेजर आउटपुट वो बिकेगा अलग कीमत पे, लेकिन जो पीसेस हैं, जो डैमेज क्लॉथ है, वो भी कहीं बिकेगा उसका अलग, उसका बाई प्रोडक्ट कहीं, उसको ऐसे ही वो वेस्ट वो भी बिकेगा। ऐसे जब आप गंदम पैदा करते हैं तो गंदम के साथ आपको उसमें स्ट्रॉ, बीट स्ट्रॉ मिलता है, वो बाई प्रोडक्ट। तो जॉइंटली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स, ऐसे हमने सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स ये डिस्कस की। लेकिन अगेन ज्यादा जो इंटरेस्ट का जो सबक थी वो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, कॉम्पिटिटिव जिनमें कंपटीशन है। फॉर इंस्टेंस वीविंग यूनिट के अंदर पावर लूम्स वही है, पावर लूम्स वही, वर्कर्स वही, और जेब के अंदर सरमाया वही। उस सरमाए से इफ यू लाइक यू कैन बाय सिल्क यार्न, you may buy cotton yarn, you may buy mixed, some cotton, some silk or nylon। तो जो आप खरीदेंगे उन पावर लूम्स पे उस तरह का कपड़ा तैयार करेगा। You may buy plain white yarn or black yarn, or you may go for strict, 2 रंग का 3 रंग का ताना बाना चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली आउटपुट। तो अब उसके अंदर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स के अंदर वी यूज द टर्म पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व like isoquant, it gives you different combinations of 2 outputs, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट रिलेशनशिप है। It provides you different combinations of 2 outputs that can alternately be produced by using the available bundle of resources and technology। जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको बरूए कार लाते हुए आप की जो डिफरेंट आउटपुट्स, फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने कहा कि अगर आप पहले सिर्फ कॉटन यार्न, कॉटन क्लॉथ पैदा करते हैं तो पावर लूम्स आपके पास, किसी के पास 16 पावर लूम्स हैं, किसी के पास 20 हैं, किसी के पास 50 हैं, किसी के पास 100 है। पावर लूम हर एक अलग अलग है, सरमाया अलग अलग है, ठीक है। तो लेबर फोर्स इज देयर। तो आप जैसे आप पहले कॉटन पैदा करते, कॉटन क्लॉथ, अभी किसी ने मशवरा दिया नहीं यार यार्न, तो यार जो दूसरा सिल्क क्लॉथ कैसे पैदा होगा कि आप उन पावर लूम में से कुछ पावर लूम्स आप मुख्तस करेंगे फॉर सिल्क क्लॉथ। उसके लिए अगेन आप मार्केट जाएंगे तो मार्केट से कुछ आप कॉटन यार्न और कुछ आप सिल्क यार्न लाएंगे। 4 पावर लूम्स पे
आपने सिल्क यार्न चढ़ा दिया और बाकियों पे आपने कॉटन यार्न, तो कुछ कॉटन क्लॉथ, कुछ अगर आप 4 पे 8 पे सिल्क कर दें तो सिल्क बढ़ जाएगी और कॉटन क्लॉथ कम। दैट इज अगेंस्ट सब्स्टिट्यूशन। So you may go for extremes, you may go for compromise combinations. तो अगर एक्सट्रीम एक का मैक्सिमम तो दूसरे का जीरो। अगर आप जीरो वाले को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू करेंगे, नहीं भाई कुछ ये भी डाइवर्सिफिकेशन, तो पहले वाले की आपको कुर्बानी देना पड़ेगी। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व gives you different options of output combinations, two output combinations, जो कि आप alternately पैदा कर सकते हैं by using the available bundle of resources and technology। जो आपके पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, मैनेजमेंट है, टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी किसी दौर में हैंड खड्डीज थी, फिर पावर लूम्स आ गई, फिर वो ऑटोमेटिक डिफरेंट, तो टेक्नोलॉजी चेंज हुई। पहले आपके पास टाइपराइटर थे, फिर आपके पास कंप्यूटर आए, फिर आपके पास सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर। सेम वे इन अदर इंडस्ट्रीज। तो टेक्नोलॉजी, तो ओवर टाइम टेक्नोलॉजी चेंज होती है, बट एट ए टाइम यू हैव टू मेक चॉइस फ्रॉम द अवेलेबल टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे आप देखते हैं, जब हमने कहा डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू प्रोडक्ट्स by using available resources की opportunity cost given, it means वो लैंड, लेबर, कैपिटल की सबकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ऐड कर दिया जाए, it will give you total cost for any combination you produce। आप combinations के लिए it means यहाँ पे आपकी cost will remain same। Any combination you choose to produce, behind that your total resource use is same, so your total cost remains same। अब total cost remains same, but different combinations of output की prices क्योंकि different है, तो वो combination promising for different revenue levels। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है, जो बिजनेस मैनेजर है, will be looking for the output combination which maximizes your revenue। तो रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। रेवेन्यू को मैक्सिमाइज अगेन करने के लिए क्या होगा कि या तो ग्राफिकली आप पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ढूंढें between the production possibility curve and the ISO revenue line। ISO revenue line प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके। वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। लेकिन आइसो रेवेन्यू लाइन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू प्रोडक्ट्स दैट कैन प्रोवाइड यू, दैट कैन जनरेट सेम लेवल ऑफ रेवेन्यू। तो उनकी जो टेंजेंसी है दैट कैन गिव यू रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग combination on the production possibility curve। या फिर alternately जैसे वो आइसो क्वांट या इनपुट में था कॉम्बिनेशन A B C के अगेंस्ट, यहाँ भी प्रोडक्ट Y1 प्रोडक्ट Y2 उनकी क्वांटिटीज गिवन होगी। हाउ मच क्वांटिटी, अगेन वन इज इंक्रीजिंग द अदर इज डिक्रीजिंग। एक की कुर्बानी देकर दूसरे को आप हासिल कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस, ये क्वांटिटीज आपके सामने हैं, तो इनको इनकी रेस्पेक्टिव प्राइसेस से मल्टीप्लाई करें। रेस्पेक्टिव प्राइसेस से मल्टीप्लाई करके उनको ऐड अप करेंगे, तो उस कॉम्बिनेशन से जो टोटल एक्सपेक्टेड रेवेन्यू उसका एस्टीमेट आपको मिल जाएगा। जब आपको टोटल एक्सपेक्टेड रेवेन्यू का एस्टीमेट मिल गया, तो now 8-10 combinations हैं, 8-10 revenue estimates। Now simply identify the highest, the biggest figure। जो biggest figure है उसको highlight या underline कर लें और उसके against
जो कॉम्बिनेशन है ए है, सी है, एफ है, उसको हाईलाइट कर दें that this is the combination which is promising for the highest possible revenue and that will result in highest possible profit in the given circumstances. तो ये वो टोटल रेवेन्यू बेस्ड या वो ग्राफिकली या फिर अगेन एमआरएस क्वांटिटी सैक्रिफाइस्ड ओवर क्वांटिटी गेन। एक तरफ से आप कुर्बानी दे रहे हैं, दूसरी तरफ से आप गेन कर रहे हैं, तो इनकी रेशो शुड बी इक्वल टू आईपीआर, इनवर्स प्राइस रेशो। एमआरएस marginal rate of substitution or marginal rate of product transformation, MRPT should be equal to IPR। तो ये आपस में इक्वल हों, जब इक्वल होंगी या मैंने कहा वो टोटल रेवेन्यू बेसिस पे या वो ग्राफिकली पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ओनली वन पॉइंट टेंजेंसी बिटवीन द आइसो रेवेन्यू एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टेक्निकल रिलेशन है, टेक्निकल रिलेशन और जो है फिजिकल रिलेशनशिप, जबकि आइसो रेवेन्यू लाइन वो उनकी आपस में इकोनॉमिक रिलेशनशिप। मार्केट के अंदर एक यूनिट Y1 का Y2 के कितने यूनिट के बराबर है, उनकी कीमत। फॉर इंस्टेंस कॉटन प्राइस एंड राइस प्राइस इट इज डिफरेंट। जब उनकी प्राइसेस डिफरेंट है उनकी, इट मींस ये आपका जो है दोनों को अकॉर्डिंगली यू आर टू कंबाइन। तो आप इनमें से तो रेवेन्यू मैक्सिमाइज, तो इसका मतलब क्या हुआ, तीन रिलेशनशिप हमने डिस्कस किए, तीनों के अंदर व्हाट वी सॉ इन द फर्स्ट, वी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मैनेजर डिसाइड्स VMP equals PX या MC equals MR. In case of input-input relationship, the producer is cost minimizer. Cost minimizer, least cost combination is to be traced. And in case of output-output relationship, the manager or the producer is revenue maximizer. Revenue maximizer or revenue maximizing combination is to be identified. That combination will result in highest possible profit. तो ये तीन रिलेशनशिप जो कि मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के अंदर, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, अगेन कॉम्बिनेशन जो है वो स्पेशलाइजेशन वर्सेस डाइवर्सिफिकेशन। समटाइम डाइवर्सिफिकेशन के जो है वो रिस्क अवर्टर प्रोड्यूसर है, वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाती है। एडवांटेजेस, वो स्पेशलाइजेशन में इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के अंदर रिस्क रिड्यूस होता है कि एक प्रोडक्ट में ऊंच नीच आए तो एटलीस्ट यू वोंट बी एट हाईएस्ट रिस्क, तो आपका जो डाइल्यूट हो जाएगा। डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, तो डाइवर्सिफिकेशन। तो ये तो अब व्हाट विल हैपन नाउ, ये आपकी क्लास तक हो गई। अभी मैं आपको लिंक भेजूंगा आपके ग्रुप में, आपके ग्रुप में लिंक भेजूंगा व्हाट्सएप पे, आप खोलेंगे, उसको खोलेंगे तो आपका क्विज टेस्ट वहां पे आपको मिलेगा। क्विज आपके 15 मिनट का क्विज है, ठीक है। अभी आपको मैं लिंक भेजता हूँ, तो 15 मिनट का क्विज, आप उसको पहले ध्यान से खोलें और उसको अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने के बाद यू विल सबमिट, ऑनलाइन सबमिशन आपकी हो जाएगी।